Hello everyone, hope you're fine and should all be fine in this type of situation. So coming to the topic, today we are going to see the topic synthetic fibers and plastics. तो आज हम लोग ये टॉपिक देखने वाले हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरेस्टिंग तो है ही, बट उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ये रोज़ करते रोज़ देखते हैं। रोज सिंथेटिक फाइबर देखिए, फाइबर कपड़े को देखिए, और प्लास्टिक की बॉटल और ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। तो लेट स्टार्ट। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन पे आता हूँ, तो फिर आप एक चीज़ लीजिए और एंड कीप ऑन एडिंग यूनिट्स एंड यूनिट्स एंड यूनिट। एक यूनिट लीजिए आप और उसके ऊपर यूनिट्स ऐड करते जाइए, तो आपको क्या मिलेगा। और लेट्स डू दिस अक्रॉस सब्जेक्ट्स। तो जो सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री, उनसे हम लोग देखकर पता करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो फिर बायोलॉजी पहले देखते हैं। तो बायोलॉजी में क्या है, सेल्स। ये जो सेल्स, छोटे छोटे जो सेल्स, मान लीजिए सेल्स, सपोज दीज आर सेल्स। जब when you bring together many cells, you get tissues. You are going to get tissues. And when you bring many tissues together, you start getting organs. See like this. This is an organ. And when you bring many organs together, you get an organism, like a person or a cat, a dog, and animal. Next, this was biology. Okay. Next, we'll see maths. So maths. So I have a point here. And if I bring many points together here, I get a line. See, this is line. And when I bring many lines together, I get different types of polygons, like a triangle, and you get octagon, hexagon, septagon, octagon, decagon, and finally you get a circle. See, this is triangle, and this, you can see, this is circle. Then we'll see in chemistry. In chemistry, we can see here atoms. Sorry. When we bring many atoms together, when we bring atoms together, you can say we get elements. And when we bring different types of elements together, we get compound. Simple. We get compound. So by now you would have realized that each and everything, whether it is living or non-living, is made up of smaller and tiny units. Smaller and tiny units which come together and give you larger and fuller units. See, you don't get so much worried about this sentence. This is a big sentence, but when you visualize it, it will be very easy for you. See, each and everything, like this book, the book kept in front of you, or your clothes, or many other things like towel, buckets, and many other things, or you, a person, each and everything, whether it is living or non-living. See, I told bucket or towel or anything that is non-living and living, like you, a person like you, is made up of smaller, very smaller, tiny units. I told units. Bring many units together, what will happen? Units which come together, like this cells. You saw the cells. Cells, when you bring many cells together, you get tissues. Then organism, which come together, they give you larger and fuller units. That unit gives you. So here you can see the diagram. See, each and everything, you can see this. It is living or non-living. It is made of smaller
smaller things which when you bring together it gives you this larger things, larger and fuller objects. ये जो छोटा छोटा सा स्मॉल ऑब्जेक्ट ना स्मॉल चीज़ है और ये अगर इसको आप मिलाएंगे बहुत पूरा ब्रिंग टुगेदर तो आपको ये ऐसा दिखेगा. क्योंकि मैं इसके लिए क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं मोनोमर एंड पॉलीमर्स. मोनोमर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं है, बहुत सिंपल वर्ड है मोनोमर में आप मोनो और मर को अलग कर दीजिए. मोनो मतलब क्या है, वन. मोनो मतलब वन होता है और मर मतलब यूनिट. मीन्स मोनोमर मीन्स वन यूनिट. See, you can see 1 unit. This is one, not many. This is only 1 unit. And in polymer, you can see poly means many. Poly means many, and mer means units. So polymer means many units. Here you can see many units like this one and this, and you do together this. This is polymer. Really sorry for that. Okay, so monomer and polymer. I'm talking about monomer and polymer because you can see shirts which you wear, or plastic buckets, or any cloth, or like towel or a bowl. Talking about them, so we can tell that they are made like this, like monomer 1 unit, polymer many units. When you bring 1 unit, when you bring together many units like this, one, then one more, one more, this becomes many units. ये बहुत सारी units हो जाती हैं. तो ये जैसे शर्ट हो गया, फिर जो भी मैंने बोला, जो बकेट, प्लास्टिक बकेट हो गई, millions of things. तो अगर आप कॉटन एक बार सोचिए, थिंक अबाउट कॉटन. जब आप उसको कॉटन को फाड़ते हैं तो फिर आपको फाइबर लाइक चीज़ दिखेगी. फाइबर लाइक चीज़, उसका एक स्पेशल नाम होता है फाइबर. फाइबर. और एनी क्लॉथ यू टेक, व्हेन यू टेयर इट, it's a fiber like thing. That is fiber. I am going to give you a scientific definition for that. So a fiber is a single and elongated piece of material which is similar to a thread. देखिए, घबराइए मत इसको देखकर, इस सेंटेंस को देखकर, क्योंकि बहुत सिंपल सेंटेंस है. तो फिर यहाँ देखिए, जैसे अभी मैंने आपसे बोला कॉटन, अगर उसको आप फाड़ेंगे तो फिर आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखेंगी फाइबर लाइक, जो ऐसे स्ट्रेट होंगी, कुछ इधर होंगी, कुछ इधर होंगी, तो उसको बोल सकते हैं कॉटन फाइबर. कॉटन फाइबर उसको बोला जा सकता है. तो फिर फाइबर इज एक सिंगल और इलोंगेटेड पीस होता है, वो बड़ा सा ऑफ मटेरियल, एक चीज़ का. जैसे अभी कॉटन बोला, और अभी आप टॉवल ले लीजिए, आप क्लॉथ ले लीजिए, आप शर्ट ले लीजिए, आप टी शर्ट पैंट जो भी लेना आप ले लीजिए, उसको फाड़ेंगे तो आपको आप फाइबर लाइक चीज़ देख सकते हैं, जो कि सिमिलर होती टू अ थ्रेड. एक थ्रेड की तरह सिमिलर होती है, which is similar to a thread. जैसे अभी ये बोला था, जैसे कॉटन, assume that this is a cotton, और ये कॉटन, ये जो है इसको फाइबर मान लीजिए, ये कॉटन पूरा, इसका जो ये फाइबर है, तो इसको अगर आप फाड़ रहे तो आपको you'll get to see fiber, small fiber type structures. That is nothing but fiber. That is cotton fiber. One more thing, fiber is a single unit. अभी बोला ना, एक ऐसे होता है स्ट्रेट लाइक, थोड़ा वो इधर उधर होता है, जो फाइबर है, अभी बोला फाइबर इज ओनली अ सिंगल यूनिट. ये जो फाइबर होता है, दिस इज अ सिंगल यूनिट. ओके, सो और आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, फाइबर एक बहुत डिफिकल्ट वर्ड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ फाइबर. 2 टाइप्स, only 2 types of fibers, that is natural fiber and synthetic fiber. See, natural fiber, आप जैसे आपने सुना वैसे आप समझ गए होंगे. नेचुरल फाइबर क्या है? जो आप प्लांट्स से लेते हैं, जो आप एनिमल से लेते हैं, वो नेचुरल फाइबर है. जैसे प्लांट्स हो गए, जो प्लांट्स होते हैं ना हमारे पास,
वो हो गया। और एनिमल्स जो होता है, एनिमल्स जैसे, एनिमल से क्या, एनिमल्स से वुल मिलता है, वुल जो शीप से आता है, वुल फ्रॉम शीप। ये होते हैं नेचुरल फाइबर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंथेटिक मीन्स नथिंग बट मैन मेड फाइबर्स, जो कि इंसानों ने बनाया है, मैन मेड आर्टिफिशियल फाइबर्स, जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते हैं, एकदम डिफरेंट होते हैं, उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। दोज आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जैसे रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, और बहुत सारी चीज़ें जो आप रेयॉन, नायलॉन भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये होते हैं दो टाइप के फाइबर्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। स्टोरी ऑफ सिल्कवॉर्म पे वो हमने नेचुरल फाइबर वो सब हम पढ़ लिए। और देखिए, अगर आपको कोई भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और उसको लिख लीजिए, तो फिर रिज्यूम कर दीजिए वीडियो को। तो फिर द स्टोरी ऑफ सिल्कवॉर्म, अब हम लोग चलते हैं द स्टोरी ऑफ सिल्कवॉर्म। तो देखते हैं सिल्कवॉर्म क्या करता है, कैसे करता है, सिल्क कैसे करता है। तो पहले हम लोग देखते हैं सिल्क के बारे में जानते हैं। तो आपने एक ये फ्रेज सुना होगा, एज स्मूथ एज सिल्क, मतलब एज स्मूथ एज सिल्क, सिल्क की तरह स्मूथ, एज स्मूथ एज सिल्क। तो जो सिल्क होता है, सिल्क इज अ वेरी एक्सपेंसिव, इट इज रियली वेरी एक्सपेंसिव, बट इट इज स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर। जो सिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बट ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वाई एम आई सेइंग इट स्ट्रॉन्ग, बिकॉज a silk wire is stronger than a metal wire. अगर एक बच्चा सिल्क वायर पे कूदेगा, मतलब वो करते हैं ना टार्जन जैसे करता है, उधर उधर ऐसे करते हैं ना पेड़ों से, तो अगर आप वैसे करेंगे सिल्क वायर से तो सिल्क वायर नहीं टूटेगा, बट अगर आप ये मेटल वायर के साथ करेंगे तो मेटल वायर टूट जाएगा। इसीलिए सिल्क बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और बहुत स्मूथ भी होता है, इसीलिए एक्सपेंसिव होता है। सारी क्वालिटीज़ हैं इसीलिए एक्सपेंसिव होता है। तो and the cultivation of silkworm to produce silk is known as sericulture. जो कल्टिवेशन होता है सिल्कवर्म का to produce silk, to produce silk, the cultivation of silkworm to produce silk को प्रोड्यूस करने के लिए जो कल्टिवेशन होता है सिल्कवर्म का, उसको बोलते हैं सेरिकल्चर। प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं सेरिकल्चर। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस पे काम करती हैं। जो एग्स होते हैं, they are incubated till they hatch into something called larva. तो एग्स होता है वो हैच, वो टूट जाता है और सिल्क जो लार्वा हैच होता है उसको सिल्क मॉथ लार्वा कहते हैं, इसी को सिल्क मॉथ लार्वा कहते हैं। उसके बाद जब ये हैच होता है, then its size is 1/4 of an inch, just quarter of an inch, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और ये जो साइज है, इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप नोट कर सकते हैं। सिल्क मॉथ इज 1/4 ऑफ एन इंच व्हेन इट हैचेस इनटू लार्वा। देखिए इतना छोटा सा होता है 1/4, इसको एज्यूम दैट दिस इज 1/4 ऑफ एन इंच। तो उसके बाद जो सिल्क मॉथ होता है उसको मलबरी लीव्स, एक स्पेशल काइंड ऑफ लीव्स, मलबरी लीव्स, उसको उस पर सिल्क मॉथ खाता है, सिल्कवर्म खाता है अप टू 6 वीक्स, 6 हफ्ते तक खाता है। और अपनी जो स्किन है उसको शेड करता है 4 times, इट शेड्स इट्स स्किन 4 times। The silkworm eats up to 6 weeks and sheds its skin 4 times। उसके बाद देखते हैं जो सिल्क मॉथ होता है जो खाता है मलबरी लीव्स, the silk moth larva eats up to 50,000 times its initial weight in mulberry leaves। उसका जो इनिशियल वेट होता है, वो जो सिल्क मॉथ लार्वा होता है, इट ईट्स अप टू 50,000 टाइम्स मोर, मतलब 50,000 टाइम्स इट्स इनिशियल वेट, उसका जो इनिशियल वेट होता है इन मलबरी लीव्स। तो नेक्स्ट, द सिल्क मॉथ ईट्स कंटिन्यूसली ऑन मलबरी लीव्स, 6 हफ्तों तक कंटिन्यूसली सिल्क मॉथ खाता है, इट फीड्स ऑन इट्स कंटिन्यूसली ऑन मलबरी लीव्स।
और जब ये खाता है 6 हफ्तों तक लगातार खाता है तो ये मैक्सिमम साइज इसकी जो हो जाती है होती है 3 इंचेस, 1/4 ऑफ एन इंच से 3 इंचेस तक ये हो जाता है। देखिए silkworm eats continuously on mulberry leaves and grows up to a maximum size of 3 inches. 3 inches is enough. जब ये 3 इंचेस का हो जाता है तो अपना ये कलर चेंज करता है एंड आफ्टर दैट इट इज़ रेडी टू स्पिन अ कोकून। और ये 15 मीटर्स पर मिनट में कर सकता है कोकून को। उसके बाद जो सिल्क वर्म होता है वो किसी से भी अटैच करता है, जैसे कोई ट्री का ट्विग हो गया, ब्रांच और श्रब्स हो गया, किसी से भी अटैच करता है अपनी बॉडी को और एक कोकून बनाता है, सुंदर सा प्यारा सा कोकून बनाता है। और 3 to 8 पीरियड में ये कोकून बनाता है एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड प्यूपेटिंग। कन्वर्जन ऑफ लावा टू प्यूपा इन 3 to 8 पीरियड इट इज नोन एज प्यूपेटिंग। ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्यूपेटिंग। उसके बाद आता है एक क्रूअल पार्ट। आफ्टर दैट क्रूअल पार्ट कम्स, जिसमें जब ये प्यूपेटिंग का पीरियड हो जाता है, प्यूपेटिंग हो जाती है, उसके बाद जो कोकून होता है उसको हॉट गैस, स्टीम और बॉइलिंग वाटर से पे उसको रख देते हैं। ऐसे ही किया जाता है, ऐसे ही सिल्क ऑब्टेन होता है। उसको हॉट गैस और स्टीम या बॉइलिंग वाटर से ट्रीट करते हैं। उसके बाद उसका जो कोकून होता है वो अनरील हो जाता है, उसको जो भी पूरा फैल जाता है पानी में। और उसी से क्या फ्रॉम दैट ओनली वो बहुत केयरफुली जो मिलता है हमको वो रील करते हैं, बहुत केयरफुली। जैसे ये ऐसे बहुत केयरफुली रील करते हैं, ऐसे बहुत वेरी केयरफुली एंड डेलिकेटली ऐसे रील करते हैं। तो इसी को वही बोल सकते हैं रील करने के बाद। जब रील करते हैं इसको तो फिर आप जानते हैं चीज़ जो कोकून से जो सिल्क मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है, जो उसका जो क्वांटिटी वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि 10 kg ऑफ कोकून 1 kg ऑफ सिल्क करता है। जस्ट 10 kg ऑफ कोकून gives gives 1 kg of silk, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम होता है। Just 1 kg of silk from 10 kg of cocoon. I think this is really very small. This quantity is really very small. तो 10 kg of cocoon से 1 kg of silk निकल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा, इसकी क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है।